Okay. Can you see my screen, students? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Today I'm going to discuss the next important data structure, that is graph data structure. So what is a graph? Graph is a data structure that consists of collection of vertices and collection of edges, and we represent a graph like this: GVE. G is for graph, and V is collection of vertices, and E is collection of edges. So the graph is represented like this: G, V, comma E, where G is for graph, and in a graph we know that there are some vertices and there are edges, and V is the set of vertices and E is the set of edges. Okay. And what is edge? Edge is actually, it is a connecting line between two vertices. Okay, it connects the vertices. Edge connects the vertices, and to represent edge, we write this way. We write order pairs of vertices like this. So U V is a edge. Okay, if you write like this, okay, within a bracket separated by comma, if you write the vertices separated by comma, so this is a order pair. That means UV is a edge. Okay, so this UV means, that means there is a connecting line between the vertex U and the vertex V. Okay, let us take one example here. This is a graph. Okay, and here this node, this is a node, this is a node, this is a node, this is a node. So four nodes are there, and here this node value is 0. Okay, so this is a vertex. Similarly, this node value is 3, this is another vertex. This node value is 2, this is another vertex. This node value is 1, this is another vertex. So here we have four vertices. This is a vertex, this is another vertex, this is another vertex, and this is another vertex. So here we have four vertices. Okay. So here you can see V is a set of vertices. You can see V equals to set of vertices. So what are the vertices we have here? 0 vertex, 1 vertex, 2 vertex, and 3 vertex. So all these are the vertex numbers. Okay. You can see all these are written in this set. Okay. So V is a set of vertices. So 0, 1, 2, 3, all these are vertices. Okay. Similarly, E is the set of edges, and edge is the connecting line between the vertices, between two vertices. So how to write edge? By the order pair of vertices like this. Okay. So U is a vertex, V is a vertex, then the edge between U, V is UV. You can write this way. You can see how that is written. So in this graph, this is a edge that connects 0 and 3. Okay. This is an edge that connects the vertex 0 and vertex 1. So this 0, 1 is a vertex. Similarly, 0, 2 is another edge. Okay. This 1, 2 is another edge. Okay. 0, 3 is another edge. So all these are edges, right? You can see how they are written. So E equals to set of edges. So equals to 0, 1, 0, 2, 0, 3, and 1. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 3, and 1, 2. All these are edges present in this graph. Okay. And the graph is represented like this: G equals to V E. Okay, so where V is the set of vertices and E is the set of edges. Okay, so this is your graph data structure. And if you compare this graph with tree, then you can say that tree is a cyclic graph. Okay, so you can say tree is a cyclic graph. That means in a tree is also a graph, but in a tree there is no cycle. When there is no cycle in a tree, when there is no cycle in a graph, then that becomes a tree. Okay. So in a tree is also a graph, but in that there is no cycle. Cycle means, you can see this is a cycle. Okay, means you can see 0, 2, 1. Okay, 0, 1, 2. So these three
form a cycle, because if you start from here 0 node, come to this node and come to this node, okay, and again you can go to this 0 node, okay. If there is a path from when you start from a node and again you come back to that node tree path, okay, and that is a cycle, because you start from here and go here, again go here, again you can come back to here. So this is a cycle, okay. So since there is a cycle here, this is not a tree, okay. If you remove this, if you remove a cycle here, if you remove this, you cut this line, then it will become a tree, okay. Or you cut this one, then it will also become a tree, okay. So tree is acyclic graph. Is that clear, friends? सर अगर हम 1 और 2 के बीच का लिंक अगर काट दें तो हाँ, सर जो ट्री फॉर्म होगा वो कौन सा ट्री होगा सर? that's a normal tree. That's not a binary tree. That may be any kind of tree. See, does not. See, I have already told you that different types of trees are there. Binary tree is different. Binary tree means two children will be there. Means 0 or 2. Okay. Means at most there will be 2 children in a binary tree. So this will not be a binary tree. This will be a normal tree. If you cut, which line you want to cut? Link between 1 or 2. Okay, link between 1 and 2, if you cut, then it will become a tree. But here the root node will be this 0 and it will have 3 children, 1, 2 and 3. Is that clear? Okay, sir. But that will not be a binary tree. That is a normal tree. Okay. Yes, sir. So graph, another example of graph here you can see, this is a graph, okay. And here the vertices are, A is a vertex, B is a vertex, C is a vertex, D is a vertex, and E is a vertex. And the edges are also, you can see, AB is a edge, okay. This is a connecting line between A and B. Similarly, BC is another edge, CE another edge, okay, BD another edge, AD, D, all these are edges, okay. You can see here. Graph GVE, okay, we represent a graph like this, GVE, where V is a set of vertices, E is the set of edges. So here V, you can see V, 5 vertices are there, this is the set, A, B, C, D, E, okay. And edges are, you can see, A, B, B, C, C, E, D, and D, B are the edges, and D is there also there, okay. And this is a graph. And there are basically 2 types of graphs. The first one is undirected graph and the second one is directed graph. Okay. So we will discuss now these 2 different types of graphs. Okay. Any questions, students, till now? No, sir. So undirected graph. In an undirected graph, the edges are not associated with the directions with them. Okay. If an edge exists between vertex A and B, then the vertices can be traversed from B to A as well as from A to B. So here in this type of graph, in undirected graph, there is no direction associated with the edges. You can see what are the edges here? AB is edge, BC is edge, BD is edge, D is edge. So all these are edges. Okay. So here in any edge in this graph, you see there is no direction. Okay, so no edge is associated with the direction. That means you take any edge. Suppose you are taking this edge AB, so you can go from A to B, and also you can come from B to also B to A. You can also come. So it is bidirectional. Okay. So in an undirected graph, there is no specific direction. You can either traverse from A to B, or you can also traverse from B to A. Okay, in any edge. Okay, you take any edge. BD you can go from B to D, or also you can go from D to B. Okay. So here in undirected graph, the meaning of AB is same as B, because that is the same edge. Okay. When you write AB, that is same as BA, because both are the same edge. Okay. AB and BA are same edge in an undirected graph, because you can traverse from A to B and B to also you can traverse. So it represents the same edge.
when you write AB or you write BA, it actually represents the same edge. Okay, is that clear? Yes, sir. The next is directed graph. In a directed graph, edges form an order pair. Edges represent a specific path from some vertex A to another vertex B. Node A is called initial node, while node B is called terminal. So here in a directed graph, there is a direction. Okay, there is a direction, and it is directional. Okay. You see here, you take this edge. AB is edge, okay, and here you start from A and you can go to B, but you cannot come from B to A because there is a direction from here. You can only go from A to B this way. You cannot come from B to A through this edge. Okay. So here there is a specific direction. In directed graph, each edge is associated with a specific direction. Okay, and here there is a initial node and there is a terminal node. Okay, you take any edge. For any edge, there is a initial node and there is a terminal node. You take this edge, AB is a edge, and here A is the initial node and B is the terminal node for this edge AB. Okay. Similarly, you take this C is another edge. So here C is the initial node and E is the terminal node. Okay. Is that clear, students? In directed Yes, sir. graph, there is a direction. Okay. Direction is associated with each edge. Okay. Digraph is a directed graph, right? So digraph is a directed graph. You can see this is the diagram for a digraph. So all the edges are associated with a direction. Okay. Then graph terminology we'll discuss now. So vertex D is adjacent to U. See, U and V both are the vertices. So when we can say that vertex B is adjacent to vertex U. So if and only if we can say if UV belongs to E. So what is E? E is the set of edges. Okay. So we can say that vertex B and vertex U are adjacent to each other if there is a connecting line between them. That means if there is a edge, okay, that connects these two vertices. Okay, then we can say that these two vertices are adjacent to each other. Okay, and in an undirected graph, the adjacency relation is symmetric. Okay. In an undirected graph, the adjacency relation is symmetric. Symmetric means what? AB is same as BA. Yes or no? AB, you can write AB is BA. Okay, because both are the same edge. Okay, that is symmetric. And you can see this is a graph. Okay, and here you can see all these are the vertices A, B, C, D, E, F. All these are vertices, and AB is incident from A to B. Okay, so AB, this is the edge, and here this edge is incident from A to B. So this edge is from A to B. Similarly, AD, you can see AD is incident from A to D. AD is incident from A to D. Similarly, you can see there is another edge D. Okay, from D to A there is another edge also. You can see. Okay, so from D to A there is another edge. So you can come from A to B using AB, and you can go from D to A using DA edge. Okay, so DA is incident from D to A. Okay, and B is adjacent to A. Node B is adjacent to A. So then node D is adjacent to A. Node D is also adjacent to A. Okay, and A is adjacent to D. So all these are the terminology and the information of this graph. Okay, is that clear, students? Is that clear, students? Yes, sir. Then path and cycle. So path
is a sequence of distinct vertices such that two consecutive vertices are adjacent. Okay, so it is a sequence of distinct vertices. For example, you take this graph. Okay, so this is a graph, and these are the vertices A, B, C, D, E. All these are vertices, and there are some edges also. You can see these are the edges, and these edges connect these vertices. Okay, and here this is a path A, B, C, D, and E. This is a path. A, we're starting from here. A, D, okay, A, D, C, D, and E. This is a path. Why this is a path? Because a sequence of distinct vertices. So here you can take the sequence of distinct vertices, then it can be a path. All these are distinct. Okay, A, D, C, D, E. All these are distinct. Okay, so this is a path. But this is not a path. A, B, E, D, C, B, E, T. This is not a path because here you see there is a repetition. B, B is there. Okay, and E, E also there. Okay, so there is repetition. This is not a path, but you can say this is a walk. When there is a repetition, then this is a walk. Okay, is that clear, friends? Hmm? Yes, sir. Okay. Then closed path. So a closed path is a path, okay, where the initial node is same as the terminal node. Okay. So that means when you start from a node and you come back to that node to a path, then that path is a closed path. So here path will be called a closed path if the initial node is same as the terminal node. Yes. So you see this is a path A, E, D, A. This is a closed path. Okay. Another example of closed path A, E, D, C, B, A. This is a closed path. Okay. Another closed path. Can anyone tell me another closed path here in this graph? Take any node as start node. Sir, AEDA. A, E, D, A. A, E, D, A. Yes, this is a closed path. Okay, any other path other than this starting node? You take other node as start node. Tell me. Closed path in this path. C, D, C, D, E, E, B, C. This, yes, this is a closed path. Okay, so this is closed path. The next is cycle. So a closed path is a cycle. Okay, a closed path is a cycle. Okay, so all the closed paths are cycle. Yes or no? So you see A, E, D, A. This is cycle. And you see A, D, C, B, E, A. This is cycle. Okay, so A, D, C, D, E, okay, and A. This is a cycle. Okay, is that clear, students? Yes, sir. Then connected and disconnected graph. So connected graph means all the nodes they are connected. Okay, all the vertices are connected to some nodes or to any other vertex. Okay, not necessarily all nodes will be connected to all, not that, but any node can be connected, any node should be connected to any, at least any one. So that is a connected graph. Okay. So this is a connected graph. See? So here all the nodes they are connected to this graph. Okay. This is a connected graph. But this is not a connected graph because you see there is an isolated vertex here. This is not connected to this. This is disconnected graph. Okay.
Yes, sir. Okay, can you see my screen, students? Can you see my screen? Okay. So connected and disconnected graph is complete. The next is complete graph. Okay. So a complete graph is a graph where every pair of vertices, okay, between every pair of vertices there is an edge. Okay. So in complete graph, all the vertices there connected. Okay, they're directly connected. So there is an edge between all the pairs of vertices. You see this one? So these two are connected, these two are connected, these two are connected. So all are connected. There is a direct connection between all the vertices. Similarly, you see this one, this graph. Here also, all the vertices they are connected directly. See here, all the vertices are connected directly. Here also you can see all the vertices they are connected directly. Okay, so there is a direct connection between all the between every pair of vertices. Okay, so this is a complete. Okay, is that clear, students? Yes, sir. Yes, sir. So if a complete graph has n vertices, then how many edges? There may be a question: if a complete graph has n vertices, then how many edges does it have? So there is a formula. This is the formula. Number of edges in a complete graph is n to n minus 1 by 2, where n is the total number of vertices in the graph. Okay. Is that clear, students? If you take here 3, n is 3 means 3 into 2 by 2, 3 edges. Here n is 4. Okay. So 4 into 4 minus 1, 3. 4 into 3, 12 by 2. 6, so 6 number of edges are there. 1, 2, 3, 4, and this one and this one. So 6 number of edges are there. Okay. So this is the formula. Okay. Then weighted graph. So in a weighted graph, each edge is assigned with some data such as length or weight. So all the edges they are assigned with some data that is known as weighted graph. So this weight, it may be length of this edge or weight, whatever you can say. Okay, so all the edges they are associated with a value. Okay, this is known as weighted graph. Okay. Then loop and multiple edges. So this is a loop, you see. So V is a vertex, and here loop means if it starts from itself and ends there itself. Okay. When the edge starts from a node and ends at that same node, then that is a loop. See, this is a loop. It starts from here and ends here. This is a self loop. So this is a loop. Okay. Then multi edges, you see, in between these two vertices W and Z, you see there are two edges. Okay, there are two edges. This is one edge and this is another edge. This is known as multiple edges. Okay. The next is regular graph. So regular graph is a graph where each vertex has same number of neighbors. Okay. That is, every vertex has the same degree. Okay.
So degree we will discuss after some time. So here this regular graph means every vertex has same number of neighbors. Okay. See, you take any vertex here. This one. So how many neighbors it is having? This is a neighbor and this is a neighbor, this is a neighbor, because there is a direct connection. Neighbor means what? There is a direct edge. Okay. So one, this 2, 4 and 3 are the neighbors of this one. Similarly, you take any node, you take this one too. So whose neighbor is how much? 1, 3 and 4, all these are neighbors of, because there is a direct edge between this node and these nodes. Okay. So this is a regular graph. Okay, where each vertex has the same number of neighbors, because this node has 3 neighbors, this node has 3 neighbors, this node has also 3 neighbors, and this node has also 3 neighbors. So the number of neighbors of each node is same. This is not a regular graph. Okay, is that clear, friends? Yes, sir. Yes, sir. And simple graph versus not a simple graph. So this is a simple graph. Okay, so simple graph means there should not be any loop. Okay, or there should not be multiple edges. This is a simple graph. Okay, because there is no multiple edges, there is no loop. Okay, and this is not a simple graph because here you can see there is a loop and there is multiple edges. Okay, in degree of a node in undirected graph. So degree of a node is the number of edges that are connected with that node. Okay, and a node with degree 0 is called as isolated node. So here in this graph, you see this is a graph, and here we have 5 nodes. Okay, V1, V2, V3, V4, and V5. We have 5 vertices, and here degree of this V1 is 2 because 2 edges are there. See, one edge and 2 edges are there connected to this vertex. Okay, so what this V1 vertex V1 degree is 2. Similarly, vertex V2 degree is 3 because 3 edges are there that are connected to this vertex V2. This is one edge, this is another edge, and this is another edge. 3 edges are connected. Okay. Similarly, degree of this V3 is how much? 1. V3 is 1 because there only one edge there. V4 degree is how much? 2. Okay. 2 edges are there. V4 2. Okay. And degree of this vertex V5 is how much? 0, because no edges are connected to this vertex. Is that clear, students? Yes, sir. The next is degree of a graph. So degree of a graph is the maximum degree of any node. Okay, that is the degree of the graph. Okay. So the maximum degree of any node of the graph or any vertex of the graph, that is the degree of the graph. So here in this case, which node is having maximum degree? Can you tell me? Which node is having maximum degree? So Which 5. vertex? Yes, vertex 5 is having maximum degree. So what's the degree of this node 5 or vertex 5? Tell me. कितना है? 5 का Sir, 3. 1 2 3 और ये भी है सेल्फ लूप, एक दूसरा 5 हो गया. ठीक है. सर वो तो एक लूप हुआ ना. और लूप में 2 एजेस हो गए ना, इधर से एक और इधर से एक, 2 एजेस है. लूप भी काउंट होगा 2. Okay, sir. Then degree of a node in a directed graph. So in a directed graph, actually we have 2 types of degrees. One is in degree and the other one is out degree. In degree means the incoming edges. Okay, out degree means the outgoing edges. So here see, take any vertex. So I'm taking this vertex A. Okay. So the how many number of incoming edges are there on this vertex A? Incoming edges? 1. 1. So its incoming degree in degree is 1. Okay. And how many outgoing edges are there from this vertex A? 1. 1. So its out degree is also 1. Okay. Suppose I will take this one, node B or vertex B. So what will be the in degree of this node B? 0.
वर्टेक्स बी का वन में index सर एक वन होगा, वन one, okay, and now degree of vertex B टू 2, okay. Now take this node D. So what is the degree of this vertex D? वर्टेक्स D का डिग्री कितना है? टू 2. और आउट डिग्री कितना है वर्टेक्स D का? वर्टेक्स D का आउट डिग्री कितना है? वन 1, because only one outgoing edge is there. Okay. The next is graph representation. So how to represent the graph? There are two ways to represent the graph. The first one is sequential representation. Okay, that use adjacency matrix to represent the graph, and the next one is linked representation that use adjacency list. Okay, the first one sequential representation. This uses the array. Okay, two-dimensional array it uses, which is a matrix. Two-dimensional array means it's a matrix. It uses adjacency matrix, that is known as adjacency matrix. And second one, linked representation, it uses the linked list. Okay, and this is known as adjacency list. Okay, so now I will discuss these two representations. So first of all, we will discuss the first one, sequential representation, and that uses adjacency matrix to represent the graph. Okay, so it uses the matrix. Now let us take one example here. This is a graph and it is having 4 nodes. Okay, 4 vertices, 0, 1, 2, 3, all these are vertices, and there are edges. So these are the edges. Okay, so how to represent this using the adjacency matrix? You see here, we have to take number of rows and number of columns for the matrix, because in matrix we have rows and columns. So the number of rows and the number of columns will be same as the number of vertices in the graph. Okay, so here in this graph, how many vertices are there? How many vertices are there in this graph? 4 vertices. Yes or no? 1, 2, 3, 4. yes sir. 4 vertices. So these vertices has value or number. Yes or no? These vertices have some value. Yes or no? But vertex 0, vertex 1, vertex 2, and vertex 3. Yes or no? So we have to write these vertices in rows and columns manner. Okay. So write in rows manner. So vertex 0 is written first, then vertex 1, vertex 2, vertex 3. All are written here in rows. Okay. This is row 0. Okay. So this first row, second row, third row, and fourth row. So first row में क्या लिखे? ये 0 पहला vertex 0. सेकेंड रो में क्या लिखे? 1 वर्टेक्स. थर्ड रो में क्या लिखे? 2 वर्टेक्स. फोर्थ रो में क्या लिखे? 3 वर्टेक्स. वैसे ही कॉलम वाइज भी लिखना है वर्टेक्स को. तो देखो 0 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम. फर्स्ट कॉलम में 0, सेकंड कॉलम में 1 लिखे, थर्ड कॉलम में 2, फोर्थ कॉलम में 3 लिख दिए. ठीक है ना. उसके बाद देखना है ये जो यहाँ पर सेल है मैट्रिक्स का. ठीक है ना. यहाँ पर क्या करना है, रो कॉलम वाइज देखना है. ठीक है ना. अच्छा, ये हमने लिख लिया यहाँ पे 0, 1, 2, 3. यहाँ पर भी 0, 1, 2, 3. ठीक है. अच्छा, अभी देखो, यू टेक एनी सेल ही. ओके, तो सपोज आई टेक हियर दिस वन. दिस इज 0th रो. दिस वन इसको कैसे बोलें? 0th रो, 1th कॉलम. ऐसा ना, 0th रो एंड 1th कॉलम. ये वाला, ये जो एलिमेंट है इसको कैसे एक्सेस करें? 0 रो एंड 1 कॉलम. एंड दिस वन, ये इसको कैसे एक्सेस करें? 0 रो 0 कॉलम. ठीक है. वैसे ये वाला कैसे होगा? 0 रो सेकंड 2 कॉलम 2th कॉलम. ओके. तो यहाँ पर ये जो सेल है इसमें मान लो ऐसे ले रहे हैं, 0, 1 ले रहे हैं. ठीक है ना. 0, 1. अगर ये 0, 1 के ये क्या नोड है ना, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये वर्टेक्स है. अगर 0 वर्टेक्स से 1 वर्टेक्स के अंदर अगर एज है, if there is an edge between this vertex 0 and this vertex 1, then write here 1, otherwise 0. Okay, but this is a normal graph. Okay, simple graph. And here in simple graph there is no self loop. Self loop इसमें नहीं है.
लेकिन देखो सेल्फ लूप कौन सा, एक पूरा डायगोनल सेल्फ लूप, ठीक है ना। देखो दिस इज 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 0 कॉलम, और ये क्या है 0 वर्टेक्स 0 वर्टेक्स। तो 0 वर्टेक्स से 0 वर्टेक्स के अंदर कोई एज है क्या, है क्या यहाँ पर सेल्फ लूप नहीं है तो 0, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखो ये वाला, ये 1 रो सॉरी 1 वर्टेक्स, ये भी 1 वर्टेक्स, ठीक है ना। तो 1 से 1 के अंदर कोई सेल्फ लूप नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो वैसे ही 2 से 2 के अंदर भी नहीं है, तो ये पूरा डायगोनल 0 हो गया, ठीक है। और बाकी जो ये केसेस हैं यहाँ पर देखो, ये 1 हो गया क्योंकि 0 से 1, 0 से 1 के अंदर एक एज है इसलिए 1। देन ये वाला 0 से 2, 0 से 2 के अंदर एक एज है इसलिए 1 हो गया यहाँ पर। देन ये वाला 0 से 3, 0 से 3 एज है इसलिए 1, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला कौन सा होगा 1 से 0, 1 to 0, 1 से 0 के अंदर ये देखो एक एज है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखे, ठीक है। अब ये वाला देखो यहाँ पर, ये वाला कैसे लिखें, रो कॉलम के समय, ये रो है ये कॉलम है, सो दिस 1 3 रो में 1 है, कॉलम में 3 है, सो 1 3 वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 3 के अंदर अगर कोई एज है तो यहाँ लिखेंगे, देखो 1 3 के अंदर एज है क्या, देखो 1 3, इसमें कोई एज है डायरेक्ट एज है क्या, देखो 1 से 3 के अंदर डायरेक्ट एज होना चाहिए, 1 से नहीं 3 सर। के अंदर नहीं है तो ये 0 लिखें, ठीक है। ठीक है, ऐसे होता है। हेलो, हाँ मैं क्लास में हूँ। Okay. So is that clear, students? Yes Yes, sir. sir. Okay. There is a question. Find the adjacency matrix of the following undirected graph. Can you find this? Can you find this, students? Yes sir. Okay. So Yes, you sir. can do it at home. Okay. This is the adjacency matrix for this. So as I told you that you have to write the vertices like this in rows and columns as you have to write. Okay. And then you can write once, if there is a edge, then you can write 1, okay, in this matrix, okay. And if there is not a direct edge between any vertex and two vertices, then you can write 0, okay. The next, adjacency matrix representation of directed graph. So directed graph में कैसे रिप्रेजेंट करें adjacency matrix representation यूज करके, यहाँ पर क्या करना है, मान लो यहाँ पर देखो ये है ग्राफिक्स में, यहाँ पर भी वैसे करना है जैसे अनडिरेक्टेड में कर रहे थे, वर्टिसेस यहाँ लिखना है ऐसे रो में, रोज ये पहला रो ए, रो के लिए लिख दिए ए बी सी डी लिख लिए रो में, वैसे कॉलम भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, कॉलम में ए बी सी डी लिख लिए कॉलम के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मान लो मैं ये वाला कर रहा हूँ, कोई सा भी एक ले लो, ये वाला, ठीक है ना, ये कौन सा है बी ए, ठीक है ना, शुरू यहीं से कर रहे हैं बी टू ए, बी टू, ये देखो बी ए रो ए, तो ये वाला बी टू ए, ठीक है ना, रो से शुरू कर रहे हैं अगर, ये मतलब बी टू ए, तो बी टू ए अगर कोई एज है तो ये 1 होगा, ना तो ये 0 होगा। देखो बी टू ए एज है क्या, देखो इसमें बी से ए को कोई एज है क्या, मतलब इसका डायरेक्शन बी टू ए होना चाहिए, समझ रहे हो ना, बी टू ए एज नहीं है, ठीक है ना, इसलिए 0 हो गया। लेकिन ए टू बी, देखो ए टू बी एज है, ठीक है ना, तो ए टू बी कैसे जाएंगे, देखो ए बी, देखो ए टू बी मतलब ये वाला रो ए कॉलम बी, सो ए टू बी देखो 1 लिखा है क्योंकि ए टू बी यहाँ पर एज है, ठीक है। वैसे कोई सा भी ले लो यहाँ पर, मान लो सी, ये वाला सी ई, ठीक है, सी ई, तो सी रो में देखना है, ई कॉलम में देखना है, देखो सी रो में देख लिया, कॉलम ई कॉलम देखो जाओ, कॉलम ई यहाँ पर देखो 1, ठीक है। वैसे ये वाला डी ई देखते हैं, डी से ई को एज नहीं है,
डी से ई को एज नहीं, लेकिन ई से डी को है, ठीक है ना। डी से ई को नहीं तो देखते हैं डी से ई को, तो डी रो में देखेंगे, कॉलम में देखेंगे, ठीक है ना। सो डी रो में ये डी, ई कॉलम में देखो किसी लाइन में आ जाओ, और कॉलम ई देखो 0 है, ठीक है। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. so this is adjacency matrix representation of directed graph. Then weighted directed graph along with adjacency matrix representation. तो weighted graph में क्या होता है, सभी एज का वैल्यू होता है, ठीक है ना, वेट होता है, और दैट इज मे बी लेंथ ऑफ दिस एज और एनी वैल्यू, ओके, एनी वेट। सो यहाँ पर 1 की जगह ये वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना। हम जैसे लिखते थे एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते थे, अदर 0 1 लिखते थे, तो यहाँ पर सेम है, खाली 1 की जगह ये लिखा जाएगा वैल्यू, एज का वैल्यू लिखा जाएगा, ठीक है। और 0 जहाँ पर एज नहीं है तो 0 लिखो, सेम, ठीक है। जैसे कि देखो और सब सेम है, बाकी यहाँ रो में लिख लिए ABCD, कॉलम में लिख लिए ABCD। अभी देखो मान लो A to B, A to B मतलब क्या है, रो A B कॉलम, सो A रो B कॉलम, ठीक है ना। देखो A रो में आए B कॉलम, देखो 4 लिखा है, ठीक है ना। 4 क्यों लिखा है, क्योंकि एज का वैल्यू 4 है, तो इसलिए 4 लिखा, और वैसे ही सारा पूरा फिल हुआ, ओके। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. The next is linked representation, and this is known as adjacency list, okay. So इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, देखो ये ग्राफ है, आई एम फर्स्ट रिप्रेजेंटिंग द undirected graph, okay. So this is the undirected graph, and here these are the vertices of this graph. यहाँ पर क्या करते हैं, इसको adjacency लिस्ट यूज करके कैसे रिप्रेजेंट करें ना, जितना वर्टिसेस होगा इस ग्राफ में उतना लिंक लिस्ट हम बनाएंगे, ठीक है। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं हम ग्राफ का, उसमें क्या करते हैं, जितना वर्टिसेस होगा ग्राफ में उतना लिंक लिस्ट हमें बनाना है, ठीक है। देखो कितना वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5, 5 वर्टिसेस है, देखो 5 लिंक लिस्ट बनाए, 1 2 3 4 5 लिंक लिस्ट बनाए, ठीक है। तो अभी सभी वर्टिसेस के लिए एक एक लिंक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका बनाते हैं, ये नोड का, ठीक है, ये वर्टिसेस ए, तो शुरुआत यहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट विद दिस वर्टेक्स, सो ए, ओके। देन इसके बाद से हम लिंक लिस्ट में क्या करते हैं, नोड बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इस नोड ए से, वर्टेक्स ए से कहाँ तक जा सकते हैं डायरेक्टली, डायरेक्ट इसके कनेक्शन कौन से वर्टेक्स के साथ है। तो ए का डायरेक्ट कनेक्शन किस किस वर्टेक्स के साथ है बताऊं मुझे, B और D के साथ। बी और डी के साथ है। तो स्टार्टिंग नोड होगा ए, क्योंकि हम ए से शुरू करते, मैंने क्या कहा, सभी नोड के लिए एक एक लिंक लिस्ट बनेगा। तो पहले हम ए का बनाते हैं, तो स्टार्ट नोड बन जाएगा ए, और हम ए से बी को भी जा सकते हैं, ए से डी को भी जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन बी के साथ है, डी के साथ है। तो इसका जो बाकी नोड बनेगा इस लिंक लिस्ट का, और 2 नोड बनेंगे, एक बी के लिए एक डी के लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ बने हैं, देखो बी के लिए बन गया एक नोड, डी के लिए एक नोड बन गया, ठीक है ना। और ये लास्ट नोड है, क्योंकि और तो कोई नोड डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है इसका ए के साथ, इसलिए 2 ही इसका नोड बनेंगे, ठीक है ना। पहला नोड होगा ये, दूसरा होगा ये, तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो दूसरा हमने बी लिया है, तीसरा डी लिया है, और ये लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट किए। ए पॉइंट कर रहा है बी को, बी पॉइंट कर रहा है डी को, ठीक है। और डी को हमने लास्ट नोड लिखा है, क्योंकि इसके बाद और कोई नहीं है, इसलिए लास्ट नोड का जो ये पॉइंटर फील्ड, नेक्स्ट फील्ड, ये नल होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि देखो ये मैंने पहले बी लिया है उसके बाद डी लिखा है, तुम ऐसा भी कर सकते हो, पहले डी लिख सकते हो, बी को यहाँ बाद में भी लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ये ऑर्डर तुम चेंज कर सकते हो। समझ में आया? लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ओके। वैसे हम मान लो बी को लेते हैं, बी के लिए जो बनाएंगे लिंक लिस्ट को, बी स्टार्ट किए बी से, ठीक है ना। अब बी से कहाँ जा सकते हैं, इसका डायरेक्ट कनेक्शन किस किस के साथ है, बी का बताओ सर। ए सी और डी, ए सी और डी के साथ है। देखो ए एक नोड बना है, डी एक नोड बना है, सी भी एक नोड बना है, ठीक है ना, 3 नोड बन गया।
अभी इसको हम इसे लिंक कर रहे हैं, देखो ठीक है ना। और ये देखो ADC यहाँ पर लिखा है, तुम ये ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ACD कर सकते हो या CAD कर सकते हो या DAC भी कर सकते हो, अजीब, लेकिन जिसको लास्ट में रखोगे उसका ये वाला नल होना चाहिए। समझ में आया? ओके। वैसे ये और जो बाकी नोड है उनके लिए भी ऐसे तुम्हें लिखना पड़ेगा। सो दिस इज adjacency लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस अनडिरेक्टेड ग्राफ। ओके, द नेक्स्ट विल राइट द adjacency लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या, इसमें भी वैसे ही करना है। डायरेक्टेड ग्राफ में जितना नोड है, वर्टेक्स है इसमें ग्राफ में, सबके लिए एक एक लिंक लिस्ट बनेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, मान लो इसको ले लो, नोड एक वर्टेक्स एक को ले लो। अब यहाँ से जो आउटगोइंग एज को देखना है तुम्हें, यहाँ से कहाँ जा सकते हो डायरेक्ट, ए से कहाँ को जा सकते हो डायरेक्ट कनेक्शन, बी को जा सकते हो डायरेक्टली, और ए से और कहीं को जा सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं, तो इसका एक ही एज है, ए से बी को, इसका एक ही नोड बनेगा, देखो बी बन गया, ठीक है ना, लिंक लिस्ट बन गया। और ये नल लिस्ट को कर ली क्योंकि और नहीं है, ठीक है ना। और मान लो इसको ले लो, ये वाला बी, तो बी से कितना एज है देखो, दूसरे नोड को कितना है, बी से 2 है, एक सी को है एक डी को है, ठीक है, एक सी को है एक डी को है, दोनों का है। तो यहाँ पर बी को छोड़ के और 2 नोड बनेंगे, बी तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बी को छोड़ के और 2 नोड बनेंगे। और कौन सा? सी के लिए एक नोड बनेगा, डी के लिए और एक नोड बनेगा, ठीक है ना। देखो सी के लिए एक नोड बन गया और डी के लिए और एक नोड बन गया, ठीक है ना। और हमने सी को पहले लिखा है, डी को बाद में लिखा है, तुम इसको चेंज भी कर सकते हो, पहले डी को बाद में सी भी लिख सकते हो, लेकिन जो लास्ट में रहेगा उसका ये नल होगा, नेक्स्ट पॉइंटर फिर नल होगा। समझ में आया? वैसे ही और जो जितने बाकी नोड है सबके लिए ऐसे लिंक लिस्ट बना है। ये समझ में आया कि नहीं, बताओ मुझे। यस सर। Okay, so this is your representation of graph, okay, and adjacency list representation of a weighted directed graph, ठीक है। अब weighted directed graph में कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे adjacency लिस्ट में? यहाँ पर 3 फील्ड लेना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। ये हो गया स्टार्ट नोड, ठीक है, स्टार्ट नोड मतलब सभी नोड के लिए तो बनाएंगे लिंक लिस्ट, ये हो गया स्टार्ट नोड, ठीक है ना, सभी नोड के लिए एक एक लिंक लिस्ट। और मान लो नोड ए के लिए बनाए तो ये बन जाएगा स्टार्ट नोड, ठीक है, एक हेड नोड की तरह, हेड पॉइंटर की तरह। उसका जो भी जितने भी और दूसरे नोड बनेंगे, ठीक है ना, उसमें 3 फील्ड रहेगा। एक हो गया नोड का नाम, और दूसरा क्या लिखना है कि उस नोड तक जाने के लिए जो एज है उस एज का वेट लिखना पड़ेगा। देखो मान लो ए से बी कर रहे हैं, देखो इस ए के लिए बना रहे हैं, तो ए का ए से कितना एज है, एक ही एज है ए से बी को, और कोई एज नहीं है। तो यहाँ पर एक नोड बन गया बी, लेकिन बी को पहुंचने के लिए इस एज का वैल्यू कितना है, 5, तो 5 यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद और को नहीं है, नल हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर जो बाकी दूसरे नोड है वहाँ पर 3 फील्ड होंगे, एक हो गया नोड का वैल्यू, दूसरा हो गया एज का वैल्यू, ठीक है ना, और थर्ड वाला होगा पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। समझ में आया ये वाला और वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ? यस सर। ओके, अभी कौन सा क्लास है तुम्हारा? ओके, नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ केमिस्ट्री, ठीक है। मैं कल ये वाला खत्म कर लेता हूँ। सो एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, सो फ्लो ऑफ कंप्यूटेशन इज वन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। कंप्यूटेशन कैसे फ्लो होता है एक नोड से दूसरे नोड को, उसके लिए हम ग्राफ यूज कर सकते हैं। नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना, कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारा एप्लीकेशन है ग्राफ का। डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हम ग्राफ यूज कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ इन रोड और ए नेटवर्क, ओके, जैसे नेटवर्क में या रोड नेटवर्क में हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं ग्राफ को यूज करके, ठीक है। और गूगल मैप में हम एक्चुअली ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, ठीक है ना। सभी लोकेशन को नोड की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, और रोड्स को एज की तरह यूज किया जाता है गूगल मैप में। समझ में आया? जो गूगल मैप में जो लोकेशन है, सभी लोकेशन को नोड करके यूज किया जाता है, नोड की समय लेते हैं, और जो रोड्स होता है लोकेशन के अंदर उसको एज की तरह लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ का एप्लीकेशन यहाँ पर गूगल मैप में यूज होता है। समझ में आया? यस सर। यस सर।
Okay, so next class we'll discuss this graph traversal. Okay. And with this I end the class. Okay. Tomorrow we will discuss the next. ओके सो असाइनमेंट मैंने दिया है तुमको, उसको कंप्लीट करके देना है डेडलाइन के अंदर, ठीक है? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नो सर. ओके ओके, आई एम एंडिंग द क्लास. थैंक यू. So now I'm going to discuss graph traversal. So the graph data structure we discussed last class. So in graph traversal, there are two types of graph traversal. The first one is breadth first search. In short, we say it as BFS. And the second one is depth first search. In short, it is DFS. It is DFS. Okay. So these are the two types of graph traversals. And what is traversing? You know, traversing means visiting all the nodes in the graph. Okay. And in the first case, the breadth first search, queue data structure is used for traversing. And in the second case, that is depth first search, stack is used. Okay. So we will discuss these two graph traversal techniques one by one. First of all, we'll discuss breadth first search. So the breadth first search, we say it in short as BFS. It starts traversing the graph from a start node and explores all the neighboring nodes. Then it selects the nearest node and explore all the unexplored nodes. The algorithm follows same process for each of the nearest node until it finds the goal. Let us take one example for this BFS algorithm. So this is a graph, and this is a directed graph, and this is the adjacency list of this directed graph. And we will apply here this BFS algorithm for traversing this graph. And during why we use this traversing? For achieving some goal. Okay, suppose you want to search a node and you want to search a path to a node. Okay, then we can use these traversal algorithms. Okay, so in this example, this graph is given. Okay, and we have to calculate the minimum path from the node A to the node E. Okay, so here we have to find the minimum path in this graph. We have to find the minimum path from the node A to node E. Okay, so okay, so we have to find the minimum path from the node A to the node E. Now how to find? So we will apply here the BFS algorithm. So let us start. So in this algorithm, in BFS algorithm, queue data structure is used. Okay, and three states of the nodes are used. The first state is ready state, second state is waiting state, and third state is processed state. Okay, and initially all the nodes of this graph, they are in ready state. Okay, and then in waiting state, the nodes that are to be processed are said to be in waiting state. Okay, and when the node is in a waiting state, they are inserted into the queue. And here we are using two queues, that is Q1 and Q2. So the nodes that are to be processed. Okay, see, in traversing, what we do, we visit the nodes. Okay, then we process it. Okay, so the nodes which are to be processed, they are inserted into the queue, in the first queue, that is Q1. And the nodes which are already processed,
Okay, they are in the processed state and they are inserted into the Q2. Okay, so two queues we are using here. You see here, this is the graph, and we want to traverse this graph to find a shortest path from this node A to node E. Okay, we want to find the minimum path from this node A to node E. Okay, this is a directed graph, and we'll find the minimum path from this starting node A to this node E. Okay, so you can take any node as starting node. Okay, you can take D as starting node, B as starting node, or any other node you can take as the start node, and the end node also you can take. Okay, or if you're not taking end node, you want to search or traverse all the nodes, then that is also possible. Okay, but here in this case, we want to find the minimum path from the start node A to this node E. Okay, so start node is A and the end node is E. Okay, so we'll apply this BFS algorithm. Okay, now according to this algorithm, we will start from the start node. Okay, so the start node is here is A. Okay, and we are using two queues. You see, this is first queue, this is second queue. Okay, and this is the queue starters you can see. Okay, so first we will start from the start node. So we take this node A. Okay, and we have to add this start node to the Q1, to the first queue, and then null to the Q2. Okay, so A is added to the Q1. This is the first queue, Q1. So A is added. Okay, and in a queue, we know there is a front and there is a end. So all the addition and deletion is done at the front, and addition is done in the rear end of the queue. Okay, so here this is the front and this is the rear also. Okay, so now A is added. Okay, now you can see in the Q1 A is added. Okay, and Q2 is null initially. Okay, in Q1 we have added, we have inserted A, and in Q2 null is there. Okay, Q2 में कुछ नहीं है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या करना है? Q1 से A को डिलीट करना है. ठीक है ना? Q1 से A को डिलीट करना है. उसके बाद इसको डिलीट करने के बाद क्या करना है? Q2 में इंसर्ट करना है. ठीक है. Q1 से A को डिलीट करना है. Q1 से you have to delete a node from the Q1. Okay, Q से नोड डिलीट करोगे मतलब क्या? कहाँ से डिलीट होता है Q में, बताओ मुझे. फ्रंट से डिलीट होता है. ठीक है, तो Q1 से ये है Q1, ये है Q2. ठीक है ना. तो Q1 में ये एलिमेंट है, Q2 नल है. तो Q1 में हमने पहले क्या किया था? A को इंसर्ट किया था, उसी को डिलीट करना है. ठीक है ना, Q एक ही है, तो Q से डिलीट करोगे मतलब क्या? जो है उसी को डिलीट करोगे. इसको डिलीट करके क्या करना है? Q2 में इंसर्ट करना है. तो Q2 में भी इसको इंसर्ट करेंगे. देखो A को डिलीट किया, A को पहले हमने विजिट किया, ट्रैवर्स किया, उसको Q1 में इंसर्ट किए थे, फिर Q1 से डिलीट करके Q2 में इंसर्ट किया कर रहे हैं. ठीक है ना. तो Q2 में यहाँ पर देखो इंसर्ट किए, दिस इज Q2. ठीक है, सो दिस इज Q2. देखो Q2 में इसको A को इंसर्ट किए. उसके बाद क्या करना है ना, A का जो एडजेसेंट नोड है. ठीक है, A का जो एडजेसेंट नोड है, अभी देखो यहाँ पर A का कौन सा एडजेसेंट नोड है? कौन सा नोड A का एडजेसेंट है, बताओ मुझे यहाँ पे. सर B और D. B और D इज द एडजेसेंट नोड ऑफ A. तो ये जो A का एडजेसेंट नोड है, इसको Q में इंसर्ट करना है. ठीक है ना. कौन सी Q में इंसर्ट करना है? Q1 में. ठीक है, Q1 में पहले क्या था? A था, उसको हमने डिलीट करके Q2 में इंसर्ट कर लिया. देखो Q2 में इंसर्ट कर लिया है. अभी Q1 खाली था. अब Q1 में हमने क्या किया? A का जो एडजेसेंट नोड है, ठीक है ना, उसको हमने Q1 में इंसर्ट कर दिया. देखो B को यहाँ इंसर्ट किया, D को यहाँ इंसर्ट कर लिया. ठीक है ना. तो ये हो गया फ्रंट, ये हो गया रियर. ठीक है ना. तो हमने क्या किया? ये देखो पहले D को इंसर्ट किया, फिर पहले B को इंसर्ट किया, उसके बाद D को इंसर्ट किया है. ठीक है ना. लेकिन इसको भी किसी ऑर्डर में इंसर्ट कर सकते हो. जो इसका एडजेसेंट नोड है, इसको आइदर तुम पहले B को, उसके बाद D को इंसर्ट कर सकते हो, या तो फिर पहले D को, उसके बाद कुछ भी कर सकते हो. ठीक है ना. यहाँ पर हमने पहले B को इंसर्ट किया है, उसके बाद D को इंसर्ट किया है. ठीक है. इसमें एक्चुअली करना क्या है कि जो नोड को Q1 से डिलीट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसको Q2 में इंसर्ट करते हैं, और इसका जिस नोड को हमने डिलीट किया अभी Q1 से, उसका जितना भी एडजेसेंट नोड है, ठीक है ना, और जो विजिट नहीं हुआ है, जिसका जो एडजेसेंट नोड है इसका, और जो विजिट नहीं हुआ, उसको विजिट हम नहीं किया है, उसको क्या करना है? Q1 में ऐड करना है. ठीक है ना. जो नोड विजिट हो चुका होगा उसको Q1 में ऐड नहीं करने का है. ठीक है.
तो अभी देखो इसका दो एडजेसेंट नोड है बी बी डी, ये दोनों विजिट हुए हैं क्या? हमने खाली एक ही नोड को विजिट किया, ए को, ये दोनों को विजिट नहीं किया है। दो एडजेसेंट है इसके बी और डी, ये दोनों को विजिट नहीं किया है, तो इसलिए दोनों को यहाँ पर ऐड किए, किसमें? Q1 में ऐड कर लिए। ठीक है, तो अभी Q1 का स्टेटस क्या है? Q1 में बी डी है और Q2 में कितना है? खाली ये है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो ये स्टेप 2 में ये है स्टेटस। स्टेप 1 में हमने क्या किया था? ए को इंसर्ट किया था Q1 में और Q2 नल था। स्टेप 2 में क्या किए? Q1 से ए को डिलीट किए और उसको इंसर्ट किए किस में? उसको इंसर्ट किया हमने Q2 में। और Q1 में क्या किए ना, ए का जो एडजेसेंट नोड थे जो विजिट नहीं हुए हैं, ठीक है ना, ट्रैवर्स नहीं हुए, उनको Q1 में इंसर्ट कर लिए। ठीक है, अब ये स्टेप 2 खत्म हो गया। अब चलो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम रिपीट करना है कहाँ तक? जब तक हमें गोल नोड जो नोड हम सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिल जाता है, या तो फिर सारा का सारा जो नोड माने Q1 में कुछ नहीं रहेगा, Q1 एम्प्टी जब तक नहीं होता है। ठीक है ना, जब तक Q1 से सारा का नोड सारा डिलीट नहीं करते हो, या तो फिर तुम अपना गोल को अचीव नहीं करते हो, तब तक ऐसा रिपीट करते रहोगे, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है ना, तो अभी देखो हम ई मिला है कि हमको ये अब तक नहीं मिला है। और Q जो Q1 है, Q1 खाली है क्या अभी तक? Q1 में अभी दो एलिमेंट है तो खाली नहीं है, और हमारा गोल भी अचीव नहीं हुआ है। गोल क्या है? ई तक पहुंचना, वो भी नहीं पहुंचे हैं। ठीक है ना, तो अभी चलो फिर से आगे बढ़ो। अच्छा, अभी ये देखो स्टेप 2 तक यही था हमारे पास स्टेट। ठीक है ना, ये विजिट किए थे और बी डी को क्या किए थे? Q1 में इंसर्ट किए थे। देखो Q1 का स्टेटस क्या था? Q1 में बी डी था, Q2 में क्या था? ए था। ठीक है ना, यही तो था Q स्टेटस आफ्टर स्टेप 2। ठीक है ना, तो अभी क्या करेंगे? फिर से रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? Q से डिलीट करेंगे, Q1 से डिलीट करेंगे, फिर से एक नोड को डिलीट करेंगे। तो Q से डिलीट करोगे मतलब क्या? Q से क्या, कौन सा नोड कहाँ से डिलीट कर पाओगे? Q से बोलो। सर फ्रंट से डिलीट होगा। फ्रंट में क्या है अभी बताओ, कौन सा नोड है फ्रंट में? बी बी था सर। डी था फ्रंट में। स्टेप 2 में कौन सा है फ्रंट में? क्या है? बी है सर। क्या? सर बी है। हाँ बी है, बी है। ठीक है, बी है। ठीक है ना, ये देखो क्यू का स्ट्रैटेजी है, बी बी फ्रंट में है। ठीक है ना, तो बी को डिलीट करेंगे अभी। ठीक है ना, तो बी को डिलीट करके क्या करना है? Q2 में इंसर्ट करना है। देखो बी को डिलीट करके Q2 में इंसर्ट कर लिए। ठीक है ना, देखो बी को हमने डिलीट किया, Q2 में इंसर्ट किया। अभी क्या करना है? बी का देखो, बी को हमने यहाँ से डिलीट कर लिया, बी था डिलीट कर लिए। ठीक है ना, अच्छा बी डी था, बी डी से डी को डिलीट कर लिया, अभी खाली डी है। ठीक है, अच्छा अभी बी का जो एडजेसेंट है फिर उसको इंसर्ट करना है Q1 में। बी का एडजेसेंट कौन सा है बताओ मुझे? सी। सर सी और एफ। सी और एफ है, तो सी और एफ को हमने यहाँ इंसर्ट किया। देखो ठीक है, तो अभी अपडेटेड जो ये है Q1 में क्या है? देखो फ्रंट में आ गया डी, रियर में एफ है। ठीक है, समझ में आया? स्टेप 3 के बाद अभी यही है स्टार्टस हमारे पास। ठीक है, Q2 में क्या है? ए बी। Q1 में क्या है? फ्रंट में है डी और रियर में एफ। ठीक है, अभी देखो हमारे पास गोल अचीव हुआ क्या? गोल क्या है? ई तक पहुंचना। ई नहीं पहुंचे? हम सर। नहीं पहुंचे, या तो फिर गोल पहुंचे हो, या तो फिर Q1 खाली होना चाहिए। Q1 खाली हुआ क्या? एम्प्टी हुआ है Q1? नो सर। नो, तो फिर से रिपीट करो वही प्रोसेस। क्या करेंगे? फिर से Q1 से डिलीट करेंगे। Q1 से कौन सा डिलीट करेंगे? कौन सा नोड जो फ्रंट में होगा? कौन सा फ्रंट में है? सर डी। डी है, डी को डिलीट करो। डिलीट करने के बाद कहाँ पर इंसर्ट करेंगे? Q2 में। Q2 में इंसर्ट कर लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे? जो नोड डी है उसका जो एडजेसेंट है और जो विजिट नहीं हुआ होगा उसको क्या करना है? इंसर्ट करना है Q1 में। तो अभी देखो डी का एडजेसेंट कौन सा है? डी का, डी को हमने डिलीट कर लिया। डी का एडजेसेंट देखो कौन सा है? सर ए और एफ। कितना है? ए और एफ। ये डी से ए को कुछ है क्या? ए से डी को है, डी ओनली से एफ। एफ। ओनली एफ। लेकिन एफ ऑलरेडी क्या है? F, Q1 में है। एफ तो है ना ऑलरेडी, एफ क्यू में Q1 में। ठीक है, यस सर। तो अगर Q1 में Yes, है sir. तो और कोई इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो तो इंसर्ट करते। ठीक है, समझ में आया? खाली ये इसका एडजेसेंट कौन सा है? नेबर, खाली ये है। ठीक है ना, एफ है, लेकिन एफ ऑलरेडी Q1 में है तो इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी है।
लेकिन हम इसको डी को डिलीट कर लिए करके इसमें इंसर्ट किए थे Q2 में। देखो अभी ये स्टेटस क्या है, देखो अभी स्टेटस तो यही है ना, Q1 में कौन सा है देखो, ये स्टेटस स्टेप 4 के बाद CF है और Q2 में कितना है ABD। ठीक है, अभी देखो गोल अचीव हुआ है क्या? नहीं सर। नो सर। और Q1 खाली हुआ क्या? नो सर। नो। नो सर। अगर इन दोनों में से कोई एक भी होता है तो वहीं स्टॉप करना है, ठीक है ना। यहाँ पर Q खाली नहीं हुआ है और गोल भी अचीव नहीं है, ठीक है। तो अभी फिर से रिपीट करेंगे। चलो स्टेप 5 को, चलो ये देखो स्टेप 5 आ गया। अच्छा स्टेप 5 में क्या करेंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, Q स्टेटस आफ्टर स्टेप 4। स्टेप 4 में Q का स्टेटस क्या है, देखो Q1 में क्या है CF है, Q2 में कितना है ABD है, ठीक है ना। अच्छा अभी Q1 से डिलीट करेंगे, फिर से कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा बताओ, कौन सा नोड? सी। सर सी डिलीट होगा। डिलीट होगा। सी को डिलीट करके क्या करना है, Q2 में ऐड करना है। देखो Q2 में ऐड कर दिए, ठीक है। ABD था, सी को ऐड कर लिए। अच्छा उसके बाद क्या करना है, जो सी का जो नेबर है एडजेसेंट नोड, उसको Q1 में इंसर्ट करना है। अभी देखो सी को डिलीट किए, सी का एडजेसेंट देखो कौन सा है, कौन सा है? ENG। ENG को हमने देखो यहाँ ऐड कर लिया। एफ था ऑलरेडी, एफ पहले से था, EAG को ऐड कर लिया, ठीक है ना, हो गया। और ये हो गया Q2 में हमने सी को इंसर्ट कर लिया, ठीक है ना, हो गया। अभी देखो गोल अचीव हुआ है क्या? मतलब प्रोसेस होना चाहिए। ये जितना रेड मार्क डार्कन देख रहे हो ना, ये मतलब प्रोसेस हो चुका है। तो अभी नोड ई प्रोसेस हुआ है क्या? सर। नहीं सर। नहीं हुआ है। और ये खाली है क्या, Q1 नहीं है। तो फिर से नहीं सर। क्या करेंगे, डिलीट करेंगे Q1 से, डिलीट। ठीक है। Q1 से डिलीट करेंगे, कौन सा नोड डिलीट होगा Q1 से बताओ? एफ। F डिलीट होगा। F को डिलीट करके यहाँ पर इंसर्ट कर दिए, कहाँ पे, Q2 में देखो इंसर्ट कर दिए। उसका F का जो एडजेसेंट है, F को डिलीट किए। F का एडजेसेंट कौन सा है? ए। A। लेकिन ये ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, विजिट हो चुका है, देखो रेड मार्क हो चुका है, ठीक है ना। अदर विजिट हो चुका होगा, या तो फिर तुम्हारा क्यू में अगर है तो और इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, उसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो और कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। खाली उसको डिलीट किए, एफ को डिलीट करके Q2 में इंसर्ट किए। लेकिन अभी भी हमारा Q में कितना है, ई और जी है, Q1 खाली नहीं है। और हमने अभी तक भी विजिट नहीं किया है, कौन सा, ई को विजिट नहीं किया है, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, फिर से रिपीट करो स्टेप्स। नेक्स्ट स्टेप को आ जाओ, स्टेप 7 में, ठीक है। अभी देखो Q का स्टेटस क्या है, Q में ई है, जी है, और Q1 में ई जी है, Q2 में कितना है ABDCF है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हमारा गोल तो अचीव नहीं हुआ, ई विजिट नहीं हुआ है और Q1 भी खाली नहीं हुआ है। फिर से स्टेप प्रोसेस मैंने वही से रिपीट करो। क्या करेंगे बताओ, कौन सा डिलीट करेंगे Q1 से? ई को ई डिलीट। को डिलीट करना है। ठीक है ना। तो ई को डिलीट करेंगे, मतलब प्रोसेस करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है ना। इसको प्रोसेस किए, डिलीट किए, डिलीट करने के बाद कहाँ पर इंसर्ट करेंगे, Q2 में इंसर्ट कर लिए। Q2 में जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो प्रोसेस हो चुका है, ठीक है ना। जिस नोड को हम Q2 में इंसर्ट कर रहे हैं उसका मतलब है वो प्रोसेस हो चुका है। तो अभी देखो हमने ई को डिलीट करके Q2 में इंसर्ट कर लिया, उसका मतलब क्या है, ई को प्रोसेस कर लिए, ठीक है। तो हमारा गोल अचीव हुआ कि नहीं? यस सर। गोल अचीव हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन Q1 खाली नहीं हुआ है, उसमें एक एलिमेंट है, तो यहीं पर हम स्टॉप कर लेंगे क्योंकि हमारा गोल अचीव हो गया, ठीक है ना। हमने सर्च किया था क्या, कि मिनिमम पाथ हमें निकालना है स्टार्टिंग नोड ए से ई तक, ठीक है। तो मिनिमम पाथ हमें निकालना है, मतलब ए से लेके ई तक पहुंचने के लिए कौन से रास्ते से जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमें, हमारे पास जो ये नोड है, ये Q2 में जो नोड है, ई से हम ई तक प्रोसेस कर चुके हैं। तो ई से हम अभी बैक ट्रैक करेंगे, ई से बैक ट्रैक करके इन्हीं नोड को यूज करके बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करके कहाँ तक पहुंचना है, ए तक पहुंचना है, ठीक है ना। और उस रास्ते में जो जो नोड आएंगे बैक ट्रैक करते वक्त, उन्हीं को लेना है मिनिमम पाथ में, ठीक है ना। तो अभी देखो ई नोड है, ठीक है ना। ई से बैक ट्रैक करेंगे, करके जाएंगे कहाँ तक, ए तक जाएंगे। तो बैक ट्रैक ई से करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, ए तक जाएंगे। तो कौन कौन सा नोड जाएंगे, ई के बाद कहाँ जाएंगे बताओ, बैक ट्रैक करेंगे। EFB।
एफ क्यों Yes, जाएंगे? sir. एफ E, तो F, A. फ्रंट हो गया, तो फ्रंट रास्ता से आगे का रास्ता हो गया, पीछे रास्ते से जाएंगे। ई सी हाँ, ई से सी को ये जाएंगे। हाँ, ई से सी को जाएंगे, सी से फिर कहाँ जाएंगे? B, बी, बी से A. ए। A. तो रास्ता हो गया मिनिमम पाथ इज ए बी सी ई। मिनिमम पाथ इज ए बी सी ई। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. सो दिस इज द मिनिमम पाथ। एग्जाम में आ सकता है, ये पूछ सकता है, कोई सा नोट दे देगा कि इस नोट से इस नोट को मिनिमम पाथ निकालो बीएफएस यूज कर, ठीक है? तो ऐसे निकालो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर तो एग्जाम मतलब Yes, sir. स्टार्ट नोट दिया है और एंड नोट दिया, तुम्हें यहाँ से यहाँ लेना है। अगर एंड नोट नहीं दिया, खाली बोला है खाली ट्रैवर्स करो, मैंने सभी नोट को ट्रैवर्स करो, तो क्या करोगे उस केस में? हम और कोई मतलब एंड नोड हमें दिया नहीं है, तो क्या करेंगे? खाली एक ही कंडीशन को देखना है कि Q1 खाली है कि नहीं। जब तक Q1 एम्प्टी नहीं होता है तब तक ऐसे रिपीट करते रहेंगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि खाली वैसे ही ट्रैवर्स करो बीएफएस यूज करके, तो कौन सा नोड को ट्रैवर्स करोगे, कौन से नोड के बाद कौन से नोड को ट्रैवर्स करोगे, वो ऑर्डर लिखो। तो तुम्हें खाली एक ही कंडीशन देखना है कि Q1 एम्प्टी जब तक नहीं होता है तब तक ऐसे रिपीट करते जाओगे। अभी देखो, मान लो हमें इसमें इस ग्राफ में ट्रैवर्स करना है सारा नोड को, तो ये तो यहाँ तक कर चुके हैं। अभी Q1 खाली नहीं हुआ है, यहाँ पर कितना है? जी है। अब जी को यहाँ से डिलीट करो, करने के बाद यहाँ इंसर्ट करो, है कि नहीं? कर देने से हो जाएगा, पूरा सब ट्रैवर्स हो गया, ठीक है? और जी का और कोई भी ऐसा नोड एडजेसेंट नोड बचा नहीं है जो ट्रैवर्स नहीं हुआ है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, any question in this? Okay, there is no question, so I'm moving to the next. So this is your BFS algorithm, okay? तो यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि 3 स्टेट यूज करते हैं, रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट एंड देन प्रोसेस स्टेट। रेडी स्टेट का स्टाटस होता है 1, ठीक है ना? जो नोड रेडी स्टेट में होता है उनका स्टाटस 1। इनिशियली सारे नोड रेडी स्टेट में है और उनका स्टाटस को 1 किया गया है, ठीक है ना? देन एनक्यू द स्टार्टिंग नोड ए, ठीक है ना? तो जो स्टार्ट नोड तुम्हें दिया गया है उसको एनक्यू करना है, क्यू में इंसर्ट करना है और उसका स्टाटस को 2 करना है। दैट मीन्स इट इज इन वेटिंग स्टेट। देन रिपीट स्टेप 4 एंड 5 until गोल इज अचीव्ड और क्यू इज एम्प्टी, ठीक है ना? तो स्टेप 5 में वही कर रहे हैं, डी क्यू कर रहे हैं नोड को क्यू से, मतलब उसको प्रोसेस कर रहे हैं और स्टाटस को 3 कर रहे हैं, ठीक है? देन एन क्यू ऑल दी नेबर्स ऑफ द एन, ओके? क्यू में इंसर्ट कर रहे हैं उसका सारे नेबर को जो प्रोसेस नहीं हुआ है और उसका स्टाटस को क्या कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं, ठीक है? और ऐसा रिपीट होता जाएगा। दिस इज द बीएफएस एल्गोरिथम, ओके? देन नेक्स्ट इज बीएफएस एल्गोरिथम, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, ओके? इसमें क्या होता है, बीएफएस में क्या कर रहे थे हम? क्यू यूज कर रहे थे, ठीक है ना? यहाँ पर स्टाक यूज करेंगे और यहाँ पर डेप्थ वाइज जाएंगे, वहां पर ब्रेड्थ वाइज जा रहे थे, यहाँ पर डेप्थ वाइज जाएंगे सर्च करने के लिए, ठीक है? एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखो एक ग्राफ दिया है, ठीक है ना? और इसमें हमें पूछा गया है कि सारा नोड को ट्रैवर्स करो, ठीक है? सारे नोड को ट्रैवर्स करो। स्टार्टिंग नोड दिया है एच, ठीक है? स्टार्टिंग नोड दिया है एच और बोला है कि सारे नोड को ट्रैवर्स करने के लिए, और ये इसका एडजेसेंसी लिस्ट इस ग्राफ का, ठीक है? अब कैसे करेंगे देखो ना, हमें इसमें स्टाक यूज करना है, ठीक है? और यहाँ पर भी 3 स्टेट यूज होते हैं। रेडी स्टेट, उसमें क्या होता है? रेडी स्टेट में दैट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ ऑल द नोड्स। वेटिंग स्टेट में क्या होता है कि वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, और जो नोड वेटिंग स्टेट में रहता है वो स्टाक में रहता है, ठीक है? देन प्रोसेस स्टेट में क्या, जो नोड रहता है उसको प्रिंट करते हैं हम लोग, ठीक है? तो अभी यहाँ एक ही स्टाक यूज करते हैं, ठीक है? ये है तुम्हारा ग्राफ और स्टार्टिंग नोड है एच, ठीक है? अभी क्या करना है, स्टार्ट नोड जो दिया है उसी को लेके क्या करना है, स्टाक में पुश करना है। देखो स्टाक में पुश किए, पुश एच ऑन टू द स्टाक, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, करने के बाद एच को माने स्टाक को क्या करेंगे, पॉप करेंगे, ठीक है? स्टाक से टॉप एलिमेंट को पॉप करेंगे। पॉप करने के बाद क्या करेंगे ना, उसका जो एडजेसेंट नोड होगा, ठीक है ना, उसको, अच्छा ये स्टाक में जो नोड हमने टॉप पॉप किया था उसको प्रिंट करेंगे। देखो प्रिंट किए, और इसका जो एडजेसेंट नोड है उसको हम क्या करेंगे, हाँ
अच्छा, एज को स्टैक में पुश किए, ठीक है ना, उसके बाद पॉप द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक दैट इज एज, प्रिंटेड एंड पुश ऑल द नेबर्स ऑफ एज ऑनटू द स्टैक, ठीक है ना, दैट आर इन रेडी स्टेट। तो अभी इसका नेबर कौन सा है बताओ, एज का, एज का नेबर कौन सा है? सर ए। ए है, देखो ए को स्टैक में इंसर्ट किया। जो इसका जो नेबर होगा और जो विजिट नहीं हुआ है उसको स्टैक में इंसर्ट करना है। ए को स्टैक में इंसर्ट कर लिए, ठीक है, देखो पहले एज को इंसर्ट किए थे और एज को प्रिंट कर लिए, उसके बाद एज को डिलीट किए, डिलीट करने के बाद फिर से क्या करना है, एज का नेबर को स्टैक में इंसर्ट किए, ठीक है, हो गया। अच्छा, अभी क्या करना है, फिर अभी क्या करना है, फिर से जब तक स्टैक खाली नहीं होता है तब तक हमें ऐसे रिपीट करना है। अच्छा, स्टैक अभी खाली हुआ है क्या, एम्प्टी है स्टैक? स्टैक एम्प्टी है क्या? नहीं है। जब तक स्टैक Yes, sir. एम्प्टी नहीं है तब तक ऐसे रिपीट करेंगे। तो फिर से डिलीट करो, पॉप करो स्टैक से ए को, ठीक है ना, ए को पॉप करके प्रिंट करो। उससे क्या करना है, ए का जो नेबर है, ठीक है ना, ए को यहाँ से लेके प्रिंट कर दिए और ऐसे पॉप कर लिए। अब ए का जो नेबर है उसको स्टैक में इंसर्ट करना है। तो ए का कौन सा नेबर है बताओ? बी डी, बी एंड डी आर दी नेबर्स ऑफ ए, ठीक है। अभी बी डी को यहाँ पर देखो इंसर्ट कर दिए, कहाँ पे, स्टैक में, ठीक है। अभी देखो स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है, फिर से डिलीट करो टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक डी, डी को डिलीट किए, प्रिंट किया उसको, और उसका क्या करना है, डी का जो नेबर है उसको फिर से स्टैक में इंसर्ट करना है। डी का नेबर कौन सा है, एफ है। और ये प्रोसेस हुआ है क्या, नहीं प्रोसेस नहीं हुआ है, उसको इंसर्ट करो स्टैक में, देखो इंसर्ट कर दिए, ठीक है, हो गया। अभी फिर से देखो स्टैक खाली हुआ है क्या, नहीं हुआ है, एम्प्टी नहीं है, फिर से रिपीट करो, देखो अभी फिर से पॉप करो यहाँ से, ठीक है, पॉप करो। पॉप करने के बाद कौन सा नोड पॉप होगा, टॉप एलिमेंट एफ, एफ को पॉप करके प्रिंट किया एफ को, ठीक है ना। उसका क्या करना है, एफ का जो एडजेसेंट होगा उसको इंसर्ट करना है स्टैक में। एफ का भी एडजेसेंट कौन सा है बताओ, एफ का एडजेसेंट कौन सा है बताओ? ए ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और कोई है क्या एडजेसेंट? और कोई नहीं है तो ऐसे रहेगा, ठीक है। अभी देखो स्टैक का स्टेटस खाली, स्टैक में बी है। अभी देखो फिर से देखो स्टैक खाली है क्या, खाली नहीं है, फिर से रिपीट करो सेम प्रोसेस। क्या करना है, इसको यहाँ से पॉप करना है और प्रिंट करना है। बी को पॉप करो, प्रिंट करो, और बी का जो एडजेसेंट है देखो उसको स्टैक में इंसर्ट करो। बी को पॉप किए, ठीक है ना, और इंसर्ट किए, प्रिंट किए, और बी का एडजेसेंट कौन सा है देखो, सी है, ठीक है ना, सी को इंसर्ट किए, ठीक है। अभी देखो फिर से सी मैंने स्टैक खाली नहीं हुआ है, फिर से क्या करना है, सी को डिलीट करना है और सी का प्रिंट करना है, ठीक है ना। सी को डिलीट किए और प्रिंट किए, और उसका एडजेसेंट को इंसर्ट करना है। देखो उसका एडजेसेंट कौन सा है, सी का, जीई, जी को इंसर्ट कर रहे हैं। अभी देखो सी को यहाँ से डिलीट कर लेंगे और जी को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया स्टैक में, ठीक है। अभी देखो फिर से स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ, फिर से रिपीट करो, फिर से डिलीट करो कौन सा, जी, जी को डिलीट करो यहाँ से और प्रिंट करो, और जी का नेबर कौन सा है, ई, ठीक है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पर स्टैक के अंदर है तो और क्या इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जी को डिलीट कर तो खाली है। अब ई को क्या करना है, ई को प्रिंट करना है, ई को प्रिंट कर लिए, ठीक है ना। अभी देखो ई भी हो गया, और अभी ई को हम डिलीट कर लिया ऐसे, पॉप ऑफ द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, इसको डिलीट करके प्रिंट कर लिया ई को, ठीक है। अभी देखो खाली हो गया स्टैक, समझ में आ गया, स्टैक खाली हो गया और हमने सारा का सारा एलिमेंट को प्रिंट कर लिया। एंड द प्रिंटिंग सीक्वेंस ऑफ द ग्राफ इज दिस, एज ए, पहले ए उसके बाद ए, पहले एज उसके बाद ए उसके बाद डी, ठीक है ना, उसके बाद एफ, उसके बाद बी, उसके बाद सी, देन जी, देन ई। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ट्रैवर्सिंग। इसी सीक्वेंस में हमें ट्रैवर्स करना है using, if you are using depth first search, okay, then this is the sequence of traversing all the nodes। समझ में आया? देखो स्टैक खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, और हमने इसी सीक्वेंस में ट्रैवर्स किया और सारे नोड को हमने विजिट कर लिया। देखो यह सीक्वेंस समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. किसी का डाउट है तो Yes, पूछो, sir. किसी का डाउट है? अगर किसी का डाउट है तो बोलो। दिस इज योर लास्ट क्लास, ओके। किसी का डाउट है तो बोलो। देखो सारा नोड विजिट हो चुका है, सारा नोड को हमने रेड मार्क में, रेड सर्कल के अंदर ले आए हैं, ठीक है, मतलब सारा नोड विजिट हो गया, ट्रैवर्स हो गया, और ये है ट्रैवर्सिंग ऑर्डर।
ओके। और स्टार डीएफएस में हम क्या करते हैं, स्टैक यूज करते हैं, ठीक है। और कब तक ऐसा रिपीट करेंगे, स्टैक से पॉप करना है, प्रिंट करना है, और उसका जो जिस नोड को पॉप करें उसका एडजेसेंट जो नोड जो है, ठीक है ना, उसको मतलब जो नेबर नोड है उसको क्या करना है, स्टैक में इंसर्ट करना है, और फिर वैसे ही रिपीट करते जाना है जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता है, ठीक है। किसी का अगर इसमें डाउट है सर तो जैसे हाँ बोलो बोलो। जैसे इसमें अगर हमें सी तक ट्रैवर्स करना होगा, हाँ हाँ तो हाँ सी के बाद जो एडजेसेंट साइड रहती है, हाँ उसको हमें प्रिंट करना करके प्रोसेस खत्म होगा, या हाँ उससे खत्म कर पहले लेंगे। खत्म मान होगा? लो तुम्हें बोला कि सी तक ट्रैवर्स करो, तो सी तक आ गया ना, सी प्रिंट प्रिंट सी जब तुम प्रिंट सी कर लोगे तभी स्टॉप कर देना है, और जी तक नहीं जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस। खाली मैं सर डी के बाद एफ कैसे आए वो थोड़ा बताइए। डी के बाद एफ, तो ठीक है। हाँ सर। अच्छा देखो, ये देखो, अच्छा ये डी देखो, अभी स्टैक में क्या है देखो, बी डी है, ठीक है। यस सर। देखो अभी स्टैक में क्या है, बी डी, स्टैक के टॉप में क्या है, डी है, ठीक है ना। अच्छा स्टैक एम्प्टी हुआ है क्या, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो नहीं क्या सर। करना है, डिलीट करेंगे टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। यस स्टैक सर। टॉप में क्या है, डी है। डी को डिलीट करो और उसको प्रिंट करो। डी को प्रिंट किए, डिलीट कर लिए, और क्या करना है, डी का जो नेबर है उसको स्टैक में इंसर्ट करेंगे। अभी जिस नोड को डिलीट कर रहे हो, पॉप कर रहे हो स्टैक से, उसका नेबर को इंसर्ट करना है स्टैक में। तो डी को डिलीट किए, प्रिंट किए, अब उसका नेबर कौन सा है, डी का, सर एफ। एफ को इंसर्ट करेंगे कहाँ पे, स्टैक में। यस सर। ऑलरेडी बी है, बी के ऊपर वो इंसर्ट होगा, देखो बी था पहले से, एफ ऊपर इंसर्ट हो गया, ठीक है। यस सर। अच्छा अभी देखो स्टैक एम्प्टी हुआ है क्या, नहीं सर। नहीं हुआ है, तो फिर से वैसे हम प्रोसेस रिपीट करो। तो अभी क्या करेंगे बताओ, एफ को डिलीट करना है। एफ को डिलीट करना है, एफ को डिलीट करके उसको प्रिंट करना है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, एफ उसके बाद क्या करना है। उसका एडजस्टमेंट नोड्स देखना है। अच्छा देखो, एफ को हमने डिलीट, ये प्रीवियस स्टैक का ये स्टाटस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी एफ को डिलीट करना है, एफ को डिलीट किए, उसका एफ का जो एडजेसेंट नोड है उसको स्टैक में इंसर्ट करेंगे। तो एफ का एडजेसेंट नोड कौन सा है, सर ए। ए। लेकिन ए ऑलरेडी विजिट हो चुका है, क्योंकि देखो रेड मार्क है ना, हमने विजिट कर लिया इसको, इसलिए इसको स्टैक में इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जो विजिट हो चुका है उसको इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है, वैसे ही रहेगा, कुछ इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो एफ प्रिंट हो गया। इसके पहले हमने किसको प्रिंट किया था, डी को प्रिंट किया था, डी के बाद एफ को प्रिंट किया, समझ में आया? यस सर। ओके, और कोई डाउट? इसमें भी अगर पूछेगा कि किसी एक पर्टिकुलर नोड तक ट्रैवर्स करना है, तो वैसे प्रिंट करते करते जाओगे। मान लो देखो, मान लो सी तक तुम्हें जाना है, प्रिंट सी, बस यहीं तक, प्रिंट सी मतलब यहीं तक आना है, बस हो गया। प्रिंट सी मतलब तुमने उसको प्रोसेस कर लिया, विजिट कर लिया। प्रिंट सी मतलब तुमने सी को प्रोसेस कर लिया, विजिट कर लिया सी को, बस वहीं पर स्टॉप कर लेना, ठीक है ना। तो और जो ऑर्डर कौन से नोड के बाद कौन से नोड को जा रहे हो वो कैसे लिखोगे, जो पहले से प्रिंट पहले क्या किए थे, ऐसे, हाँ, प्रिंट एज, पहले एज, ठीक है ना, पहले एज, उसके बाद कौन सा, एज के बाद ए, उसके सर बाद ए। डी, डी उसके बाद, डी के बाद एफ, एफ के बाद बी, बी के बाद सी, हो गया, ठीक है ना। उसी ऑर्डर का लिखना है। तो ये हमने सारा यहाँ पर क्या, हमने सारा नोड विजिट किया, ये है, ठीक है ना, ये सारा, दिस इज द ट्रैवर्स ऑफ ऑल द नोड्स ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है, ओके। अच्छा यस सर। इसमें और एक चीज है कि दिस इज योर डायरेक्टेड ग्राफ। अगर डायरेक्टेड ग्राफ ना हो के अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ हो तो क्या करोगे,
तो वहां पर तुम्हें क्या करना है, मान लो तुम्हें अभी तुमने एच नोड को प्रोसेस किया, ठीक है ना, तो अभी तुम्हें यहाँ दोनों इसके जितने भी नेबर हैं, अगर अनडिरेक्टेड होता तो इसके कितने नेबर होते एच के? सर 3 3 थे हैं? सर 3 3 होते, ए सी जी। तो इन तीनों को इंसर्ट करना पड़ता है तुम्हें, कहाँ पे? स्टैक में। और किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो तीनों को, ठीक है। और फिर उन तीनों में से देखना तुम्हें वो होता है कि मतलब वो तुम्हें देखना है कि जो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है या ऑलरेडी स्टैक में है तो उसको और इंसर्ट नहीं करने का है। समझ गए? यही खाली डिफरेंस, और कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर डायरेक्टेड है तो वहां से जहां जहां जा सकते हो उसी को खाली इंसर्ट करना है। समझ में आया? यस सर यस ओके, सर और कोई क्वेश्चन है? दिस इज योर लास्ट क्लास, ओके। असाइनमेंट मैंने तुमको दिया है, उसको 25 तारीख के अंदर देना है, ठीक है ना, हाथ से लिखना है और सभी पेज में साइन करना है। उसके बाद उसको फोटो उठा के पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके देना है, और कौन से मेल आईडी में भेजोगे वो भी मैंने लिखा है उसमें, ठीक है। और कोई अगर क्वेश्चन है तो बोलो मुझे।